Hello friends, this is Rohit Kosik, the member of ICAI and the faculty member of accountancy at my own institute, Rohit Classes of Commerce. Friends, I am here to impart you the quality knowledge of accountancy. Beforehand, I have some significant talk to do with you. Friends, today our country is suffering from a pandemic called coronavirus. However, most of the countries in the world are being victimized by the coronavirus. But the efforts made by our country in the fight against coronavirus are superb. Friends, I appeal to all of you that please follow all the instructions given by our government, whether it is a central government or it is a state government. Friends, please support our government in the fight against such a jihadist pandemic. Friends, please stay home in lockdown, stay safe and please maintain social distancing. Friends, if you have to go outside your home, then please wear your mask, sanitize any stuff you purchase from market and frequently sanitize your hands. Now friends, I am going to start one of the easy and entertaining subject, accountancy. Friends, believe me, accounts is a very easy subject and I promise you friends that I will give best of my efforts so that आपके लिए accounts great extent तक easy हो जाए. और friends, while teaching accountancy, मेरा aim ये नहीं होगा कि मैं आपको 100% मार्क्स दिलवाऊं. However, मेरा जो एम होगा वो होगा कि मैं आपको बेस्ट क्वालिटी नॉलेज प्रोवाइड करूं सो दैट आप 100% मार्क्स अपने आप लेके आए एंड इसके अलावा यू विल बिकम द एक्सपर्ट ऑफ अकाउंट्स इन योर प्रोफेशनल लाइफ. Let's start our new session for accountancy and friends, best of luck to all of you for the new session and thank you. Hello friends, this is CA Rohit Kosik. आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अकाउंटेंसी फॉर क्लास 12 फॉर द एकेडमिक ईयर 2020-21 एंड फ्रेंड्स, आपको मैं ढेरों शुभकामनाएं देता हूं आपके नए एकेडमिक ईयर के लिए. ओके फ्रेंड्स, नाउ स्टार्ट आवर न्यू सेशन अकाउंटेंसी क्लास 12. सो फ्रेंड्स, एकेडमिक ईयर 2020-21 में जो सिलेबस आप कवर करेंगे वो है आपके सामने. तो आपके सिलेबस को फ्रेंड्स तीन कैटेगरी में एक्चुअली डिवाइड किया गया है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी. पार्ट ए विद द वेटेज ऑफ 60 मार्क्स, पार्ट बी विद द वेटेज ऑफ 20 मार्क्स एंड द पार्ट सी इज विद द 20 मार्क्स. Part A comprises 3 units, Unit 1, Unit 2, Unit 3, and Part B comprises Unit 4 and Unit 5. In the Part A, Unit 1 is Financial Statement of Not-for-Profit Organization with the weightage of 10 marks. Unit 2, Accounting for Partnership having the weightage of 30 marks. And the Unit 3, Accounting for Companies with the weightage of 20 marks. And after that, Part B comprises Unit 4 and Unit 5. Unit 5 is Analysis of Financial Statement with 12 marks. And the cash flow statement with the weightage of 8 marks. And my friends, part C is your project work to be asked in your practical and not to be asked in your exam. हाँ मेरे दोस्तों, मैं सही बोल रहा हूं. पार्ट सी जो है आपको एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, ये आपको प्रैक्टिकल होगा आपके स्कूल में, उस प्रैक्टिकल में आपसे पूछा जाएगा. और इस प्रैक्टिकल को लेने के लिए सीबीएसई से कोई फैकल्टी आएगी और वो प्रैक्टिकल आपसे लेंगे.
अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर प्रोजेक्ट वर्क में हमें क्या क्या करना है, क्या क्या कैटेगरीज हमें गिवन है। प्रोजेक्ट वर्क में आपको 3 चीजें कवर करनी है मेनली, प्रोजेक्ट फाइल, वाइवा वॉशी एंड रिटर्न टेस्ट। प्रोजेक्ट फाइल में आपको क्या होगा, प्रोजेक्ट फाइल में आपसे एक फाइल जो है मेंटेन करवाई जाएगी और आपको बिफोर प्रैक्टिकल उसे स्कूल में सबमिट करवाना होगा। व्हाट इज वाइवा वॉशी? वाइवा वॉशी एक ओरल टेस्ट होगा जो आपकी गेस्ट टीचर फैकल्टी जो आएंगी वो आपसे लेंगी, और रिटर्न टेस्ट आपका एग्जाम, जो एक एग्जाम होगा स्कूल में प्रैक्टिकल वाले दिन। और माय फ्रेंड्स सबसे आसान टेस्ट होता है ये, 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और ये टेस्ट होगा 12 मार्क्स का। तो फ्रेंड्स दिस इज योर सिलेबस जो आपको एग्जाम में आपको मतलब इस एकेडमिक ईयर में कवर करना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये है सर कि आप किस सीक्वेंस से हमें सिलेबस को कवर करवाएंगे। सिलेबस जो है मैं आपको सबसे पहले यूनिट नंबर 2 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप करवाऊंगा, फिर यूनिट 1 पे जाऊंगा, फिर यूनिट 3 पे जाऊंगा, और आफ्टर दैट आई विल शिफ्ट टू द पार्ट बी। एंड पार्ट बी में सबसे पहले यूनिट 4 एंड यूनिट 5, and then your syllabus will be over. So friends, let's start our first unit, that is unit number 2 accounting for partnership। यहां पे हमें 4 मेजर चैप्टर्स हमें करने हैं, या मैं अगर बोलूं तो 4 मेजर कॉन्सेप्ट जो हमें सीखने हैं वो है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड लास्ट वन इज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में हमें कवर करना है कि जब कोई पार्टनरशिप फर्म अपना बिजनेस करेगी तो वहां पे जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करना पड़ता है वो हमें फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म में कवर करना है। नेक्स्ट चैप्टर इज वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। यहां पे जो गुडविल होती है, गुडविल अगर मैं बोलूं तो गुडविल एक एसेट है जो आपने 11th क्लास में पढ़ा था। अभी इससे ज्यादा मैं आपको जब चैप्टर करवाऊंगा तो बताऊंगा। तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल जो चैप्टर आप पढ़ेंगे वो केवल स्पेशली पढ़ेंगे रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के लिए। इसका जो रिलेवेंस है वो यहां पे ज्यादा है, तो इसीलिए हम वैल्यूएशन ऑफ गुडविल को स्पेशली रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म के लिए पढ़ेंगे। और जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, ये जो है यहां पे हमें क्या सीखना है कि अगर कोई पार्टनरशिप फॉर्म का मैनेजमेंट चेंज होता है, क्या चेंज होता है दोस्तों, मैनेजमेंट चेंज होता है, तो हमें क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है। अब मैनेजमेंट चेंज होने का मतलब क्या है, मैनेजमेंट चेंज कब कब होगा, तो मैनेजमेंट चेंज 3 कैटेगरीज है यहां पे मैनेजमेंट चेंज होता है। मतलब कब कब होगा, जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फर्म का चेंज होगा। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए 2 पार्टनर है ए और बी और दोनों बिजनेस कर रहे हैं साथ मिलके एज ए पार्टनरशिप फर्म और प्रॉफिट को शेयर करते हैं इक्वली 1:1 के रेशियो में, और अब वो डिसाइड कर रहे हैं कि वो प्रॉफिट को रेशियो को चेंज कर दे 3:2 में। तो ऐसी सिचुएशन में हम बोलेंगे कि मैनेजमेंट जो है उनका चेंज होने जा रहा है, और दिस इज द पार्ट ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। सिमिलरली जब कोई नया पार्टनर बिजनेस में एडमिट करता है, जब नया पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में एडमिट करता है तो भी रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म होता है। एंड द लास्ट वन इज जब कोई पार्टनर बिजनेस से रिटायर होता है या उसकी डेथ होती है, इन दैट केस जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम करेंगे वो भी रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का पार्ट होगा। और एट लास्ट सबसे आखिरी में हमें डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप करना है। मींस व्हेन द पार्टनरशिप फर्म जो है हमारी डिसॉल्व होगी, मतलब हमारा बिजनेस जो है वो वाइंड अप होगा, उस केस में आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करना है वो हमें यहां पर सीखना है। तो फ्रेंड्स दिस इज आवर अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप यूनिट नंबर 2। और आज जो हम करेंगे, अभी जो स्टार्ट करेंगे
फर्स्ट चैप्टर, दिस इज एक्चुअल में ये आपकी बुक जो टीएस ग्रेवाल है उसमें चैप्टर नंबर 2 होगा और चैप्टर नंबर 2 हम जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, सो दिस इज योर यूनिट नंबर 2 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप। ओके, फ्रेंड्स आप जो अभी हम करने जा रहे हैं दिस इज फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप और ये है आपका चैप्टर नंबर 2। एक्चुअल में फ्रेंड मैं आपको बता दूं, हम जो सिलेबस कवर करेंगे वो हम उसके लिए मतलब जो बुक हम लेंगे वो बुक होगी हमारी टीएस ग्रेवाल। टीएस ग्रेवाल की बुक से हम सिलेबस को कवर करेंगे और टीएस ग्रेवाल के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 2 जो है वो है फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। ओके, फर्दर फ्रेंड्स, क्यों मैं टीएस ग्रेवाल बुक को रेफर करता हूं, इसके पीछे लॉजिक मेरा ये है कि इन माय ओपिनियन टीएस ग्रेवाल जो बुक है उसमें जो कॉन्सेप्ट एंड क्वेश्चंस है वो आपके एग्जाम के लिए एग्जैक्टली रिलेवेंट है। इन अदर वर्ड्स, क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट जो इस बुक में गिवन है वो काफी बैलेंस्ड है अगर हम सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखें। इसके अलावा जो सर टीएस ग्रेवाल हैं वो हमारे आईसीएआई के बोर्ड ऑफ स्टडीज के डायरेक्टर हैं और सीए फर्टर्निटी जो है टीएस ग्रेवाल सर को काफी लाइक करती है। कुछ ये लॉजिक है जिसकी वजह से मैं इस बुक को रेफर करता हूं। और फर्दर ये जो बुक है आपको मार्केट में इजीली इसका एक्सेस मिल जाएगा, मींस यू कैन परचेज दिस बुक इन द मार्केट इजीली। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट कॉन्सेप्ट इन द फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप, दैट इज डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो अराइज होगा वो है कि डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप क्या है, मींस पार्टनरशिप का मतलब क्या है, पार्टनरशिप का मीनिंग क्या है। दोस्तों, पार्टनरशिप जो टर्म है, आई थिंक आप सबने इस टर्म को पहले भी सुना होगा या कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। और लेमैन की लैंग्वेज में अगर मैं बोलूं, पार्टनरशिप का मतलब क्या है, जब दो या दो से ज्यादा पर्सन्स मिलके कोई काम करे उसे पार्टनरशिप बोलते हैं। पर माय फ्रेंड्स यहां पे जो आपको पार्टनरशिप की डेफिनेशन पढ़नी है, हाँ यू कैन से उसका बेस तो वही है जो आप सोचते हैं, लेकिन आपको जो एग्जाम में डेफिनेशन लिखनी है वो डेफिनेशन आपको लिखनी है जो आपकी बुक में गिवन है। तो हम जो यहां पे पढ़ेंगे वो डेफिनेशन होगी जो आपके बुक में गिवन होगी, और जो बुक में डेफिनेशन गिवन है वो हमने बोरो की है फ्रॉम इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये एक एक्ट है जो मेंटेन किया गया है, जो फॉर्म किया गया है फॉर द पर्पज ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस, मींस पार्टनरशिप फर्म को कंट्रोल करने के लिए जो गाइडलाइंस गिवन है वो सभी कहां पे गिवन है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। सो फ्रेंड्स, क्या है डेफिनेशन पार्टनरशिप की इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में? देखिए, एज पर सेक्शन
4 of Indian Partnership Act 1932 partnership is the relation between the persons who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any one of them acting for all. Friends, this is the definition given in section 4 of Indian Partnership Act 1932. So friends, I would like to repeat this definition. As per section 4 of Indian Partnership Act 1932, the partnership is the relation between the persons who have agreed to share the profits of a business being carried on by all or any one of them acting for all. तो फ्रेंड्स, ये है डेफिनेशन जो आपको एग्जाम में लिखनी है. बट सर, एक चीज हम आपसे पूछेंगे, क्या सेम टू सेम डेफिनेशन हमें इसको क्रैम करना पड़ेगा? ये बात को बोलते हुए मुझे खेद है फ्रेंड्स कि डेफिनेशन जो आप एग्जाम में लिखेंगे टू द पॉइंट आपको सेम लिखनी पड़ेगी. इन द सिंपल मैनर आपको इसे क्रैम करना पड़ेगा. बट सर, क्रैम करना तो बड़ा डिफिकल्ट है, तो कैसे करेंगे? आप हमारी हेल्प कीजिए. बिल्कुल दोस्तों, मैंने आपको पहले भी बोला था कि अकाउंट्स, मेरा पर्पस ये है कि अकाउंट्स में आपको कोई भी परेशानी ना आए. मींस अकाउंट को मैं आपके लिए जितना हो सके उतना इजी बनाऊं, इंटरेस्टिंग बनाऊं. तो इस डेफिनेशन को याद करने के लिए भी मैंने कुछ क्रक्स बनाया है. तो वो क्रक्स क्या है अभी हम करते हैं. तो आप क्या करें, इसको पॉज करें, वीडियो को पॉज करें और देन इसको कॉपी करें, बिकॉज मैं इसको इरेज कर रहा हूं ताकि आगे बढ़ सके. ओके फ्रेंड्स, प्लीज पॉज द वीडियो एंड राइट द डेफिनेशन. ओके फ्रेंड. तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन जो अराइज होता है, पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप क्या है? भाई फ्रेंड्स, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था, पार्टनरशिप इज अ रिलेशन. क्या है? पार्टनरशिप एक रिलेशन है. ओके सर, ये तो समझ में आ गया, रिलेशन तो है, लेकिन रिलेशन किसका, किसके बीच में? रिलेशन किसके बीच में? फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है, कृपया करके हिंदी से परहेज ना करें. हमारी मातृभाषा है, थोड़ी बहुत हिंदी भी हमें कर लेनी चाहिए, आई थिंक. तो पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप एक रिलेशन है. रिलेशन किसके बीच में है? रिलेशन पर्सन्स के बीच में है. ओके, रिलेशन जो है वो किसके बीच में है? पर्सन्स के बीच में है. रिलेशन जो है पर्सन्स के बीच में है. बट पर्सन क्या करेंगे? पर्सन क्या करेंगे? पर्सन जो है एग्री करेंगे. क्या करेंगे? एग्री. ओके, एग्री करेंगे. एग्री किस लिए? एग्री किस लिए करेंगे? टू शेयर द प्रॉफिट. टू शेयर द प्रॉफिट. बट सर, एक
बात बताओगे क्या हमें? बिल्कुल बिल्कुल बताऊंगा फ्रेंड्स। आज मेरा मूड बहुत अच्छा है, आपको जो भी पूछना है पूछ लीजिए। प्रॉफिट कहां से आएगा? माय फ्रेंड्स, प्रॉफिट जो है वो आएगा बिजनेस से। ओके, अब ये बिजनेस कौन चलाएगा? अगला क्वेश्चन जो आपका है, बिजनेस कौन चलाएगा? बिजनेस चलाएंगे या तो ऑल पर्संस और एनीवन एक्टिंग फॉर ऑल। तो फ्रेंड्स, दीज आर द क्रक्स, दिस इज द क्रक्स फॉर द डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। और ये जो मैंने इंग्लिश में जो वर्ड्स लिखे हैं वो इस डेफिनेशन के कीवर्ड हैं। तो इस डेफिनेशन को मैं अगेन रिपीट करता हूं आसान शब्दों में। फ्रेंड्स, पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप एक रिलेशन है। रिलेशन किसके बीच में है सर? रिलेशन पर्सन्स के बीच में है। पर्सन्स क्या करेंगे? पर्सन एग्री होंगे। एग्री किस चीज के लिए होंगे? टू शेयर द प्रॉफिट्स। अच्छा, प्रॉफिट्स कहां से आएगा? प्रॉफिट बिजनेस से आएगा। और सर ये तो बता दो, बिजनेस कौन चलाएगा? माय फ्रेंड्स, मेरे प्यारे दोस्तों, बिजनेस जो है या तो सारे के सारे पार्टनर चलाएंगे, ऑल चलाएंगे, और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ओके फ्रेंड्स, तो ये थी आपकी डेफिनेशन। इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं समझाने के पर्पज से। तो पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप एक रिलेशंस है कुछ पर्सन्स के बीच में, मतलब कुछ पर्सन्स रिलेशन में आते हैं। अब वो रिलेशन किस चीज के लिए होगा? एक बिजनेस एक्टिविटी से प्रॉफिट को कमाने के, जो प्रॉफिट कमाएंगे उसको शेयर करने के लिए होगा। और इस बिजनेस की एक खास बात यह भी है कि या तो इस बिजनेस को सारे पार्टनर मिलके चलाएंगे, या ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक पार्टनर बिजनेस चलाए अदर पार्टनर्स के बेस पे। तो आई थिंक आपको डेफिनेशन अच्छे से समझ में आई होगी और आपको ये लर्न भी कुछ हद तक हो गई होगी। तो फ्रेंड्स, दिस इज योर डेफिनेशन। डन? ओके। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको पार्टनरशिप की डेफिनेशन अच्छे से समझ में आई होगी। तो नेक्स्ट टॉपिक जो आप करेंगे वो है एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। फ्रेंड्स, एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप जो है आपसे एग्जाम में डायरेक्टली नहीं पूछे जाते। हां, 2-3 पॉइंट कुछ ऐसे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स में जिसके बेसिस पे आपसे या तो कोई केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है या कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन बना के आपसे पूछ सकते हैं। तो मेरे ख्याल से, इन माय ओपिनियन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप आर इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। तो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। अब क्या क्या है एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप? फ्रेंड्स, घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, मतलब घबराना आपको बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि जब मैंने आपको डेफिनेशन में कीवर्ड दिए थे, आपके जो वो कीवर्ड थे वो कीवर्ड ही आपकी पार्टनरशिप की कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉर्म करेंगे। मींस जो पार्टनरशिप के कैरेक्टरिस्टिक्स के जो पॉइंट्स है, ये वही सेम पॉइंट है जो मैंने पार्टनरशिप की क्रक्स में कीवर्ड दिए थे। पार्टनरशिप की डेफिनेशन जो थी उसमें जो मैंने कीवर्ड्स दिए थे, वो कीवर्ड्स ही आपके एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म करेंगे। ओके फ्रेंड्स,
तो अब सबसे पहले मैंने उसमें कीवर्ड लिखा था रिलेशन बिटवीन द पर्सन्स। तो सबसे पहला पॉइंट जो हम कवर करेंगे वो है पर्सन्स। अच्छा, पर्सन्स का मतलब क्या है? पर्सन्स एक प्लूरल वर्ड है और इसमें जो है पर्सन्स लिखने से सेंस क्या बनती है कि दो या दो से ज्यादा पर्सन होंगे। हाँ, यस, आपसे यही वो बोल रहा है, टू और मोर। फ्रेंड्स, ये पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो अब जो है पार्टनरशिप फॉर्म करने के लिए टू और मोर पर्सन्स का होना जरूरी है। सर एक मिनट, हाँ बोलिए माय फ्रेंड्स। सर एक क्वेश्चन माइंड में है, बोलो दोस्त बोलो, मैं आपके साथ हूं, मैं आपकी हेल्प करूंगा, बोलिए आप। सर ये जो दो या दो से ज्यादा पर्सन आपने बोला है, क्या ये कोई भी पर्सन हो सकता है क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, आप बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। अब जो दो या दो से ज्यादा पर्सन होंगे वो होने चाहिए कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एटलीस्ट टू पर्सन्स, क्या कम से कम दो पर्सन्स, ठीक है माय फ्रेंड। ओके, जो ये पर्सन होंगे, पर्सन्स शुड बी competent to contract, should be competent to contract। ओके, कम से कम दो पर्सन होने चाहिए और जो पर्सन्स भी होंगे वो कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। मतलब क्या है इस बात का? इसका मतलब ये है कि हमारी कंट्री में कोई भी एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट मतलब कोई भी लेन देन का कॉन्ट्रैक्ट जो मनी की फॉर्म में होता है, वहां पे जो पर्सन कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, जिनके पास राइट है कॉन्ट्रैक्ट करने का, केवल वही पार्टनर किसी पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर बन सकते हैं। तो सर एक बात बताओ हमको, वो पर्सन है कौन कौन से, हमें कैसे पता लगेगा जो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं? क्या वो हमारे सिलेबस में है? फ्रेंड्स बिल्कुल भी नहीं, आपके सिलेबस में कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ कि कौन कौन पर्सन कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, बट आई कैन हेल्प यू, मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं। कैसे? फ्रेंड्स आपको ये नहीं देखना कि कौन कौन पर्सन कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, आपको केवल एक बात देखनी है कि कौन कौन कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। आपको नेगेटिव लिस्ट जो है वो देखनी है। मतलब आपको कुछ पर्सन्स दिए गए हैं, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, उनके अलावा सभी लोग जो है कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है? फॉलोइंग पर्सन्स आर नॉट competent टू कॉन्ट्रैक्ट। फॉलोइंग पर्सन्स जो है कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। इसमें तीन पर्सन आएंगे, तीन तरह के पर्सन आएंगे। फर्स्ट वन इज माइनर। अच्छा फ्रेंड्स अगर आपकी एज 18 साल से कम है, 18 ईयर से कम है, तो आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। देयरफॉर आप किसी भी पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर नहीं बन सकते। बट इसका एक एक्सेप्शन भी है, इसको हम बाद में कवर करेंगे, अभी नहीं, ठीक है फ्रेंड्स। सेकंड वन इज पर्सन विद अनसाउंड माइंड। अगर मैं आसान भाषा में बोलूं, वो आदमी, वो पर्सन जो अपना दिमागी संतुलन खो चुका है। आसान भाषा में, और आसान भाषा चाहिए दोस्तों, जो पागल है, जो आगरा भेजने के लायक है, जो आगरा भेजने के लायक है। ओके, एंड द लास्ट वन इज पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय एनी लॉ। मतलब फ्रेंड्स
अगर कोई पर्सन है जिसको हमारे देश के किसी अदर कानून ने, अदर लॉ ने डिस्क्वालीफाई कर दिया है, तो ऐसा पर्सन भी पार्टनरशिप नहीं कर सकता, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। ओके फ्रेंड्स, तो 3 पर्सन मैंने आपको बताए जो कॉम्पिटेंट नहीं होंगे कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। फर्स्ट वन इज माइनर, सेकेंड वन इज पर्सन विद अनसाउंड माइंड, एंड द थर्ड वन इज पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय एनी लॉ। ओके फ्रेंड्स, इसमें एक और एग्जामिक टॉपिक कवर तो इसी के अंदर होगा। एक क्वेश्चन और अराइज होता है, मैक्सिमम नंबर्स ऑफ पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म। फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन यहां पे बनता है कि एक पार्टनरशिप फर्म में मैक्सिमम कितने पार्टनर हो सकते हैं। ऑल्दो फ्रेंड्स, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में मैक्सिमम लिमिट के बारे में कुछ भी नहीं बोला गया है, केवल मिनिमम लिमिट्स है कि आपके पास कम से कम 2 पर्सन होने चाहिए। हाँ, मैक्सिमम के बारे में पार्टनरशिप एक्ट में, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है। ओके, लेकिन हमारी कंट्री में जो कंपनीज पे अप्लाई होने वाला कानून है, एक्ट है, दैट इज कॉल्ड कंपनीज एक्ट 2013। एज पर, तो कंपनीज एक्ट 2013 में मैक्सिमम लिमिट के बारे में बोला गया है। एक्चुअल में कंपनीज एक्ट 2013 में एक सेक्शन आता है, सेक्शन 464। सेक्शन 464 हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, भारतीय सरकार है, उसको एक पावर देती है। क्या? कि वो डिसाइड करे कि मैक्सिमम पार्टनर एक पार्टनरशिप फर्म में कितने हो सकते हैं। हां, याद रहे कि मैक्सिमम पार्टनर जो सेंट्रल गवर्नमेंट सेट कर सकती है, जो लिमिट सेट कर सकती है, वो 100 से ज्यादा ना हो। मींस पावर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी कि वो अलाउ कर सकती है मैक्सिमम 100 पार्टनर्स। ओके फ्रेंड्स, लेकिन इन द रूल 10 ऑफ कंपनीज मिसलेनियस रूल 2014, सेंट्रल गवर्नमेंट मेंशन द मैक्सिमम लिमिट एंड दैट इज 50 मेंबर्स। मतलब कंपनीज एक्ट रूल नंबर 10 ऑफ कंपनीज मिसलेनियस रूल 2014 के तहत हमारी गवर्नमेंट ने, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि किसी भी पार्टनरशिप फर्म में 50 से ज्यादा, 50 से ज्यादा पार्टनर नहीं होने चाहिए। तो फ्रेंड्स, अल्टीमेटली अगर मैं आपको बोलूं, अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर एक पार्टनरशिप फर्म में कितने हो सकते हैं, आपको ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। जो मैं लिखवाऊंगा, जो मैं बोल रहा हूं, ऐसा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। आपको जस्ट ये लिखना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स आर 50। कितने फ्रेंड्स? 50। फिर भी मैं थोड़ा सा राइट कर देता हूं, आप नोट कर ले, नॉलेज पर्पज के लिए। सेक्शन 464 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 empowers, section 464 of companies act 2013 empowers the central government सेंट्रल गवर्नमेंट को इन शॉर्ट सीजी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सीजी। अगर मैं आगे सीजी बोलता हूं तो इसका मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट। सेक्शन 464 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 empowers the central government to decide the maximum partners
that can be allowed in a partnership form. Subject to the maximum limit of 100, मतलब 100 से ज्यादा पार्टनर नहीं हो सकते. सेक्शन 464 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 empowers the central government to decide the maximum partners that can be allowed in a partnership firm, subject to the maximum of limit of 100. However, White Rule 10 of companies miscellaneous Rule 2014, central government has decided the 50 members. So, आपके लिए केवल और केवल क्वेश्चन ये है कि कितने पार्टनर मैक्सिमम हो सकते हैं एक पार्टनरशिप फर्म में, और मैक्सिमम पार्टनर जो एक पार्टनरशिप फर्म में हो सकते हैं आपको आंसर देना है 50. कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, कुछ भी रेफरेंस देने की जरूरत नहीं है कंपनीज एक्ट 2013 की, कंपनीज मिसलेनियस रूल 2014 की. सो फ्रेंड्स, दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट, 2 or more persons. ओके, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा. आप कृपया करके अपनी वीडियो को पॉज करें और इसको नोट करें, फिर मैं आगे स्टार्ट कर रहा हूं इसको इरेज करके. ओके फ्रेंड्स, प्लीज नोट. तो फ्रेंड्स, सेकंड पॉइंट हम करने जा रहे हैं. तो सेकंड पॉइंट क्या है? पार्टनरशिप की डेफिनेशन में हमने पढ़ा था पार्टनरशिप क्या है. पार्टनरशिप रिलेशन है पर्संस के बीच में, और पर्सन क्या करेंगे? एग्री होंगे. क्या होंगे? एग्री. तो सेकंड पॉइंट इज एग्रीमेंट. क्या? एग्रीमेंट. फ्रेंड्स, एग्रीमेंट होना बहुत जरूरी है. अगर आप कोई पार्टनरशिप बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें एक एग्रीमेंट होना बहुत जरूरी है. Although agreement can be of 2 types. The first one is oral agreement and the second one is in writing agreement. क्या? Writing agreement. Writing agreement. अब राइटिंग ओरल एग्रीमेंट हालांकि आप कर सकते हैं, बट इट इज नॉट डिजायरेबल. इट इज नॉट डिजायरेबल. तो हाँ, देयर शुड बी राइटिंग एग्रीमेंट. दिस इज डिजायरेबल. ओरल एग्रीमेंट कैन बी देयर बट इट इज नॉट डिजायरेबल. हाउएवर, राइटिंग एग्रीमेंट शुड बी देयर. ओके फ्रेंड्स, तो राइटिंग एग्रीमेंट अगर किसी बिजनेस में होता है उसको बोलते हैं पार्टनरशिप डीड. और पार्टनरशिप डीड को अभी हम आगे इसको अच्छे से पढ़ेंगे. फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट क्या था? चलो याद करते हैं जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी. सर, पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप एक रिलेशन है बिटवीन द पर्संस. ओके, पर्सन क्या करेंगे? पर्सन एग्रीमेंट करेंगे. अब वो एग्रीमेंट किस चीज का होगा? टू शेयर द प्रॉफिट. यस, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो प्रॉफिट शेयरिंग पे होगा. किस पे होगा? प्रॉफिट शेयरिंग. तो फ्रेंड्स, प्रॉफिट शेयरिंग, आप जो भी, अगर आप 2 या 2 से ज्यादा पर्सन मिलके कोई बिजनेस करते हैं, पार्टनरशिप फर्म चलाते हैं,
तो उसमें आपके जो भी एग्रीमेंट होंगे उसमें एक सबसे कंपल्सरीली एग्रीमेंट होगा प्रॉफिट को शेयर कैसे किया जाएगा। मतलब प्रॉफिट इक्वली शेयर करेंगे या प्रॉफिट किसी अदर रेशियो लाइक 3:2, 5:3, 5:2 एटसेट्रा एटसेट्रा। तो आप जो है इसके लिए एग्रीमेंट करेंगे। सर एक बात तो बताओ, प्रॉफिट के लिए एग्रीमेंट तो कर लिया, लेकिन अगर लॉस होगा तो क्या करेंगे दोस्तों? लॉस के केस में भी आपका जो प्रॉफिट शेयरिंग का एग्रीमेंट होगा वही काम करेगा। मतलब एक्चुअल में क्या होता है कि अकाउंट्स में लॉस तो कुछ होता ही नहीं है, यहां पे सब कुछ जो भी होगा वो प्रॉफिट ही होगा। सर लॉस होता तो है, लेकिन फ्रेंड्स अगर लॉस होगा तो भी उसको प्रॉफिट बोला जाता है। ऐसे केस में उसको नेगेटिव प्रॉफिट बोला जाता है, ना कि लॉस बोला जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो प्रॉफिट शेयरिंग में क्या है? प्रॉफिट इंक्लूड्स लॉस ऑल्सो। ओके फ्रेंड्स, एंड द नेक्स्ट पॉइंट क्या है? चलो दोबारा लर्न करते हैं, दोबारा याद करते हैं। पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप रिलेशन है किसके बीच में? पर्सन्स के बीच में। पर्सन्स क्या करेंगे? एग्री करेंगे। एग्री किस चीज के लिए? टू शेयर द प्रॉफिट्स। और प्रॉफिट कहां से आएगा? प्रॉफिट बिजनेस से आएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट जो है आपका बिजनेस एक्टिविटी, मतलब लॉफुल बिजनेस एक्टिविटी। तो जो बिजनेस एक्टिविटी, फर्स्ट ऑफ ऑल देयर शुड बी बिजनेस एक्टिविटी, और वो बिजनेस एक्टिविटी जो है वो लॉफुल होनी चाहिए, मतलब कानूनी होनी चाहिए, लीगल होनी चाहिए। अच्छा, बिजनेस एक्टिविटी ऐसा नहीं है कि दो या दो से ज्यादा पर्सन मिलके कोई सत्संग कर रहे हैं, कोई जागरण कर रहे हैं तो उसको पार्टनरशिप बोला जाएगा। नहीं, देयर शुड बी अ बिजनेस एक्टिविटी। बिजनेस एक्टिविटी शुड बी देयर। और हाँ, बिजनेस ऐसा होना चाहिए जो इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग लीगल हो। अब मान लीजिए हम बिजनेस करेंगे ड्रग्स की स्मगलिंग का। हाँ, ड्रग्स की स्मगलिंग का बिजनेस क्या लीगल है इंडिया में? नहीं दोस्तों, लीगल नहीं है। तो ऐसे बिजनेस को हम पार्टनरशिप, ऐसे मतलब ऐसे बिजनेस की हम पार्टनरशिप नहीं कर सकते। तो बिजनेस शुड बी लॉफुल एंड शुड बी देयर शुड बी बिजनेस एक्टिविटी। बिजनेस होना चाहिए और वो लॉफुल होना चाहिए। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है? मेरे को नहीं पता फ्रेंड्स, आपको ही बताना है। चलो एक बार दोबारा याद करते हैं जो डेफिनेशन पढ़ी थी हमने। पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप रिलेशन है। रिलेशन किसके बीच में है? रिलेशन पर्सन्स के बीच में है। पर्सन्स क्या करेंगे? एग्री करेंगे। एग्री किस चीज के लिए करेंगे? प्रॉफिट शेयर करने के लिए। प्रॉफिट कहां से आएगा? प्रॉफिट बिजनेस से आएगा। अब बिजनेस कौन चलाएगा? तो बिजनेस शुड बी कैरिड ऑन। बिजनेस should be carried on by all or anyone acting for all। तो दोस्तों आपका जो आखिरी पॉइंट है वो क्या है? आखिरी पॉइंट है बिजनेस शुड बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन एक्टिंग फॉर ऑल। इसका मतलब है अगर आसान भाषा में बोलूं, रिलेशन बिटवीन पार्टनर एंड फर्म एंड रिलेशन among the partners are that of principal and agent। कहने का मतलब ये है, अगर मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं, कि पार्टनर जो है या तो सभी पार्टनर मिलकर बिजनेस चलाएंगे
या कोई एक चलाएगा अदर के बिहाफ पे। इसको फर्दर अगर एक्सप्लेन किया जाए, होगा क्या, मतलब क्या इसका, एक पार्टनर मतलब फर्म और पार्टनर के जो बीच का रिलेशन है वो प्रिंसिपल और एजेंट का है। और इसके अलावा भी अगर पार्टनर्स में जो आपस में जो रिलेशन होगा वो भी क्या होगा, प्रिंसिपल और एजेंट। मतलब अगर कोई पार्टनर कोई काम करता है, कोई एक्टिविटी करता है, तो वो अदर पार्टनर को उस एक्टिविटी से बाउंड कर सकता है, बिकॉज वो एजेंट है अदर पार्टनर्स का। ओके फ्रेंड्स, और अगर किसी पार्टनर ने मान लीजिए मेरे लिए काम किया है, मैं भी पार्टनर हूं, मेरे लिए भी काम किया है, तो मैं प्रिंसिपल हूं, तो मैं उसकी एक्टिविटी से बाउंड हो जाऊंगा। तो सिंपल सी बात है, पार्टनर्स और फर्म के बीच में एंड पार्टनर्स के आपस में भी जो रिलेशन होगा वो होगा प्रिंसिपल और एजेंट का। मतलब एक पार्टनर अदर पार्टनर का प्रिंसिपल भी है, एजेंट भी है। फर्म जो है पार्टनर की प्रिंसिपल भी है और पार्टनर की एजेंट भी है। तो दिस इज द योर एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। एंड नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपनी थ्योरी को रैप अप करेंगे एंड आफ्टर दैट हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स जो इस चैप्टर में हैं वो स्टार्ट करेंगे। ओके फ्रेंड, एंड सो फ्रेंड्स आई कंक्लूड फॉर टुडे। डन। ओके फ्रेंड्स, आई हैव सम इंपॉर्टेंट टॉक टू डू विद यू। फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने जो ड्रीम्स है उन पे कभी भी गिव अप ना करें। मीन्स नेवर गिव अप ऑन योर ड्रीम्स, बिकॉज आपके ड्रीम प्रीशियस हैं। ओके फ्रेंड्स, आपके जो ड्रीम है वो क्या है, प्रीशियस। तो फ्रेंड्स, मैं कौन से ड्रीम की बात कर रहा हूं, डू यू नो कि मैं कौन से ड्रीम की बात कर रहा हूं? मैं जो ड्रीम की बात कर रहा हूं वो ड्रीम नहीं जो आप रात को सोते वक्त देखते हैं। मैं उन ड्रीम की बात कर रहा हूं जो रात को आपको सोने नहीं देते। तो फ्रेंड्स, नेवर गिव अप। भाड़ में जाए दुनिया, आपको हारना नहीं है और अपने ड्रीम्स को पूरा करना है। खाना छोड़ देंगे, पीना छोड़ देंगे, सोना छोड़ देंगे, लेकिन ड्रीम्स को पूरा करेंगे। ओके फ्रेंड्स, बाय फॉर टुडे। और हाँ, लास्ट में मैंने कुछ अच्छी लाइनें मैंने डाली है वीडियो में, प्लीज आप उनको देखें। और हाँ, अगर आपको हमारी आज की क्लास, आज का लेक्चर समझ में आया है, अच्छा लगा है, तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो एंड प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स। एंड एट लास्ट, अगर आपको कोई क्वेरी है या कोई सजेशन आप मुझे देना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट करें। ओके फ्रेंड्स, बाय फॉर टुडे। तुझे लगता है कि तू हार गया, साला मन ही मन अपने सपनों को मार गया। क्यों नाकामयाबी की डाल पर झूलना चाहता है? क्यों तू आज अपने सपनों को भूलना चाहता है? अपनी कैपेबिलिटीज को पहचानता भी नहीं। अगर बिल गेट्स भी तेरे जैसा सोचता ना, तो आज तू माइक्रोसॉफ्ट को जानता भी नहीं। अपने ही गम को आंसुओं के संग पी रहे हैं। सिर्फ जिंदा रहने के लिए तो दुनिया में करोड़ों लोग जी रहे हैं। इस दुनिया में रहकर तुझको लड़ना होगा, अपना नाम इस करोड़ों की भीड़ से अलग करना होगा। कुछ नहीं बन पाएगा अगर ऐसे ही डरेगा। दुनिया मुट्ठी में होगी जब कुछ बड़ा करेगा। ना BMW का क्रेज होता, ना ऑडी पे मरते। अगर सक्सेसफुल बनना इतना ही आसान होता तो आज सभी ऐसा करते। कोई काम करता है तो कोई बड़ी बड़ी फेंकता है। एक स्कूटर पर चलने वाला भी एरोप्लेन खरीदने के सपने देखता है। अपने सपनों की रोटी को मेहनत के तवे पर सेका। ऐसा ही एक सपना धीरू भाई अंबानी ने भी देखा। फेलियर्स के सामने कभी झुके नहीं, कितनी बार गिरे लेकिन रुके नहीं। कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ते रहे, हार्डवर्क से अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते रहे। उनकी कामयाबी को सबने सलाम किया। रिलायंस जियो ने न जाने कितनी टेलीकॉम कंपनीज को नीलाम किया। वेला बैठे रहने से कुछ नहीं मिलेगा यार, कोई नहीं देगा तुझे भीख। कामयाब होना है तो धूप में जलना सीख, ठंड में ठिठुरना सीख, आग में जलना सीख, कांटों पे चलना सीख। भूखा प्यासा भी रहना पड़ेगा, फ्लो के साथ भी बहना पड़ेगा। टाइम अगर मुश्किल हो तो खुद से ये कहना पड़ेगा दैट आई एम द बेस्ट।
I am the best.